बजाज यानी आरकेवी, और आप मुझे देख रहे हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रदीप जी, Yes, sir. what a wonderful time, what a wonderful day today. Wow, amazing, isn't it? It's a proud moment, as Mr. Modi said, not only for the country but the whole world. Zabardast, sir, absolutely Zabardast. This is absolutely fantastic. Just look at this. Wow. Really and truly wonderful. Absolutely wonderful. Can we hear the Prime Minister? Just one second. We've landed on the moon, certainly. We landed on the moon today. आज चंद्रमा पर Chandrayaan अभी तक आया. And let's hear what the Prime Minister had to say. Of course, we'll get that very shortly. Pradeep ji, but this is really amazing, isn't it? I mean, It is, sir. Sir, we are the fourth country in the whole world. We have landed a soft landing on the moon. US, Russia, China, and India. That's right. Look where we are called. With the fifth greatest economy and the fourth country in the whole world to land on the moon, and the first to land on the south side of the moon. On the South Pole, very Yes. near the South Pole. And I think we've gone there to discover water. There are huge quantities of water lying under the lunar surface. That's what we've gone to discover. And do remember, in May this year, इस साल मई के महीने में, Japan had tried to land on the moon. Mission failed. It crash landed. Luna 25, the Russian Chandrayaan mission, the Russian moon mission, it could not even get into the moon orbit. It could not even get into the moon orbit. Bilkul. So I think this achievement is absolutely huge. Do we have the Prime Minister's speech now? Can we play that now? I really would love to hear him speak. Of course, we already have Mr. Vinay Kambikar with us. We will go to him very shortly. And I would love to hear his thoughts, his first thoughts. What does this mean for just about everybody? And I think this is a proud moment for the nation. And I love the kind of support that ISRO gets and all our scientists and technologists get from the Prime Minister. And we must not forget, Pradeep ji, all the scientists, all the researchers, all the chaps who actually molded that entire thing, the fabricators and all the other people who manufactured that film, that film which is immune to radiation and stuff like that, which made it radiation safe, and which landed on the moon. And of course, now we've got those solar cells which will be charged up. I think it will take possibly a 24-hour Earth day for it to be charged up properly. और उसके बाद जाकर के I think the Vikram lander's door will open and the Pragyan rover will come out, I think. Exactly, sir. No, whatever you call it, sir, it's an achievement by itself. The Prime Minister watching it from South Africa, the whole nation and the whole world. In fact, Devendra Fadnavis, Japan, the entire media, people who are interested in this particular thing, been watching this. Now, it's a great moment for India. Zabardast. And if you see, we are step by step taking on the world. The economy is concerned, the fifth, and Mr. Modi said we are going to be a 5 trillion economy anytime close by. Now look at the space. We are flagged ourselves where the space is concerned, moon is concerned. We talk about Mangalyaan. You talk about everything. We talk about everything. We are there. Can we hear the Prime Minister? Can we hear the Prime Minister? The whole Minister? country has been absolutely proud of this particular achievement, as the Prime Minister Modi himself said. What an achievement. It's a great thing not only for this country, for the whole world. Let's hear the Prime Minister. I would like to hear a little bit. What did the Prime Minister say? Can we hear that, please? ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है।
हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address प्रदीप जी, चंदा मामा अब सिर्फ दूर के नहीं है, चंदा मामा सिर्फ एक टूर के हैं। एग्जैक्टली सर। अभी बहुत जल्दी बिल्कुल आगे जा करके हमारे बच्चे जो है वो टूर पे जाएंगे। यस, चंदा मामा दूर के, वो पूरे 4 लाइन मोदी साहब ने वो दोहराया जी, जबरदस्त। बचपन में गाते थे। Now I think we've got Mr. Vinayak Ambekar with us. Vinayak Ambekar साहब, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते, आपको आज बधाई तो हो। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। अरे प्रदीप जी, वो मिठाई मंगाई थी, वो नहीं आई? मिठाई आ रहा है। अगर मिठाई आ गई हो तो भाई स्टूडियो में भी भेज दीजिए, कुछ खा लेंगे। अंबेडकर जी की किताब भी आ रहा है। अंबेडकर जी की किताब भी आ जाएगी और अंबेडकर जी को भी क्या है कि डिजिटली हम लोग मिठाई खिला देंगे यहीं से। लेकिन जबरदस्त, मिल गई, आपने बोला तो मेरे को मिल गई सर। सर जबरदस्त, आज तो जबरदस्त, क्या दिन है सर, मजा आ गया। बस, आप क्या फील कर रहे हैं वो बता दीजिए। मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूं। और जो मोदी जी ने 9 साल पहले बोला था कि भारत एक दिशा में निश्चित प्रगति करने जा रहा है,
तो वो प्रगति हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे जी। हैं। भारत आज दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हुई है। जी। भारत आज दुनिया में चौथा एक देश हुआ है जिसने चांद्रयान यशस्वी करके दिखाया। भारत आज सोलर पावर में तीसरा बड़ा देश हुआ है। जी। भारत ऐसा हर स्टेप में, हर फील्ड में भारत आज जोर से प्रगति कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और इसका पूरा क्रेडिट मैं मोदी जी को देता हूँ। But this is amazing, isn't it? मतलब absolutely amazing. I don't even have words to express. भाई हमने जब मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त 1969 की बात है. I was just 7 years old. 7 साल का. Right, मिठाई आ गई. सेवियो जी आप लेकर आइए. Yes, यहाँ लेकर मिठाई आ आइए. गया. Thank you very much. This is the मिठाई. प्रदीप जी, बिल्कुल. लड्डू खाइए सर. आप भी खाइए सर. लड्डू खाइए सर. लड्डू खाइए. Cheers to Sir. everybody. Just प्रकाश है. अरे भाई ले जाओ इसको. बाकी सबको भी दीजिए प्लीज. ये डब्बा ले जाइए यहाँ से. थैंक यू सो मच. लेके जाइए. आइए ले जाइए. थैंक यू सर. आपके लिए मिठाई. जी मिल गया. अंबेडकर साहब मिठाई. चलिए. मिल गया. सर मैं आपको बता रहा था कि 1969 की बात है. व्हेन दी अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन. अब मेरा ये कहना है सर, हम तो मैं तो उस वक्त 7 साल का था. वो 7 years old at that time. कभी हम लोग ये विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत का स्पेसशिप, भारत का, इंडिया का स्पेसशिप मून पर लैंड करेगा. मतलब व्हाट डू यू फील सर? आप बताएं. आपके जहन में क्या गुजर रही है इस वक्त? आपके जहन में इस वक्त क्या हो रहा है? वो जरा बताएं सर. आज पूरा भारत ये विन जो है अपना उसको सेलिब्रेट कर रहा है जी. मगर मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जीत की घड़ी में सब सहायता करते हैं, मगर जब पहला चंद्रयान फेल हुआ था तो जो इसरो के चीफ थे वो रो पड़े थे और उनको सहारा देने के लिए, उनको संभालने के लिए अपने पंतप्रधान माननीय मोदी जी उधर गए थे और उन्होंने उनको गले लगा के, पीठ थपथपा के उनको समझाया कि एक अपयश से कोई भी ऐसा बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है. यू विल डेफिनेटली सक्सीड. तो ये जो एक हौसला बढ़ाने का काम है, ये लीडरशिप का बहुत बड़ा काम है ऐसा मैं समझता हूँ. और ये काम मोदी जी ने किया. उसके मोदी जी खुद उधर बैठे थे बहुत घंटा और वो जब उनके साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने एक ऐसा तय कर लिया कि नेक्स्ट स्टेप जो है अपना वो 100% सक्सेस का स्टेप रहेगा. बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया है. पहले एक बड़ा इंजन रहता था, 4 इंजन रहती थी, एक इंजन निकाल दिया. बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया, बहुत इंडियनाइजेशन किया और पूरा मेक इन इंडिया के साथ ये जो अभी का चंद्रयान है इसको सक्सेस दिया है. तो ये मैं बोलता हूँ कि काम करने वाले तो रहते हैं, उन काम करने वालों का हौसला बढ़ाने वाला जब मिल जाता है तो ये दोनों इकट्ठा आके एक सक्सेस बांध सकते हैं. और वो शुरू से ही है. अंबेडकर साहब, प्रदीप जी आपको याद होगा. बिल्कुल. ये शुरू से ही है. वो देयर इज अ वेरी लवली लड्डू बाय द वे. लड्डू बहुत खूबसूरत है यार. कहाँ से लाए हो? बहुत ही खूबसूरत है जी. और I wish you were here, Ambedkar Sahab, that you could have shared the laddu with us. बहुत ही खूबसूरत है. मोदी साहब has always stood by the people losers. अगर बोला कि हार है तो मैं जवाबदार हूँ, लेकिन हार है तो मैं जवाबदार हूँ. जैसे अंबेडकर जी बोले, उन्होंने सिवान साहब को जो फॉर्मर हेड थे इसरो के, उनको गले लगाया. मगर आलोचना करने वाले विपक्ष बोल रहे थे कि इसरो के चीफ जा रहा था, मोदी साहब ने खींच लिया और जबरदस्ती गले लगाया. तो इस प्रकार से आज जैसे दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, आज दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि मोदी साहब को इसरो के बहुत सारे स्टाफ को 3 महीने का पगार नहीं मिला. मोदी साहब को उसका भी उनको ध्यान में आना चाहिए. फिर राजीव शुक्ला जी बोल रहे हैं कि लैंडिंग है या लैंडिंग है या जो भी है वो मुझे लॉन्चिंग है, मुझे लैंडिंग या लॉन्चिंग, ये मुझे राजीव शुक्ला जी का कहना मुझे मालूम नहीं है. Which is absolutely terrible. But I tell you what, as far as Mr. Modi is concerned, Mr. Modi has always been completely and totally in support of science and technology. जब प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने आकर अपने पूरे ब्यूरोक्रेट्स को बोला कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी का आप जो है सहारा लीजिए. लेकिन प्रदीप जी ने जो अभी बोला, अंबेडकर साहब, ये कांग्रेस को क्या हो गया है? इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज. वो डेस्परेट है, उनको कोई भी गलती निकालने के लिए. लॉन्चिंग या लैंडिंग ये कहने की बात है. वो भी राजीव शुक्ला, he was a journalist और नॉलेज रखते हैं. और जिस प्रकार से अलग दिग्विजय सिंह का कहना है कि इसरो के स्टाफ के सैलरीज
अभी बीजेपी ने टोटल उसका बोले कि ये गलत है, ये पूरे टोटल गलत है जो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। और बिहार के नीतीश कुमार जी उनको बोलते कि मुझे कुछ याद ही नहीं, मालूम ही नहीं चंद्रयान का क्या हो रहा है। तो पूरा इंडिया के घटक दल है, उनको कुछ मालूम नहीं। भले अभी सक्सेसफुल होने के बाद कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन आया है कि वी अप्रिशिएट एवरीबडी फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू नाउ द साइंटिस्ट नाउ इंक्लूडिंग अब्दुल कलाम, होमी बाबा, सब का नाम इंक्लूड किया। बोले 2008 में भी गया था। कांग्रेस का पूरा डिस्क्रिप्शन मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा डिस्क्राइब करते। नेहरू ने शुरू कर दिया, 2008 में भी गए थे, चंद्रयान 2 भी था। उसके बाद उससे पहले राकेश शर्मा जी विंग कमांडर भी गए थे ऊपर, जो आर्यभट्ट मिशन था। तो हर चीज का वर्णन किया है। बट ऑन द फेस ऑफ इट ये कांग्रेस को यह दिखाना कि यह सक्सेस मोदी का सक्सेस है, वो नहीं चाहते इस सक्सेस के लिए। हाउ डू यू सी इट अंबेडकर साहब? देखिए, देश की जनता जो है वो समझती है कि किस घराने के लोग कैसे बर्ताव करते हैं, और वो खाली अपने घराने के लिए जो कांग्रेस के लोग हैं वो बात करते रहते हैं। आज की जो मोमेंट है वो मोमेंट जो है वो गए 9 साल के सक्सेस का मोमेंट है। ये 100% मोदी जी का सक्सेस है। वो आपने जैसा बताया, जैसे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप का चार्ज लिया, उन्होंने जितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस्टेब्लिशमेंट है खुद विजिट किए, उनके लोगों के साथ उन्होंने बात की, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी एस्पिरेशंस, उनके प्रोजेक्ट सब समझ के लिए, और उनको पूरी तरह से फिनेंशियल रहो, मॉरल रहो, टेक्निकल रहो, सब टाइप के सपोर्ट दिए, उनको ऑटोनॉमी दी, और ना ही उनको कोई गलत चीज उनके ऊपर डाली। तो इसके लिए जो सपोर्ट मिला उन लोगों को, जो उनको एनकरेजमेंट मिली, उससे उनका हौसला बढ़ गया, और ये सक्सेस आज उस हौसला बढ़ने का ही रिजल्ट है, ऐसा मैं पूरा समझता हूँ। विपक्ष का क्या है, विपक्ष दिन ब दिन विफल होते जा रहे हैं, डेस्परेट होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मोदी जी की आभा बढ़ेगी वैसे वैसे उनको ऐसे कोई बहाने निकालने पड़ेंगे मोदी जी को नाम रखने के लिए। मगर देश की जनता जो है वो पूरी समझदार है। आज तक का जो रिकॉर्ड है देश की जनता का कि कौन कार्य कर सकता है, कौन बात कर सकता है, और कौन वो बात को सच में ला सकता है, ये देश की जनता को समझ में आया है। तो हमको इसकी कोई चिंता नहीं है। खड़गे जी कुछ बोले या राजीव शुक्ला जी कुछ बोले, हमको कोई उसकी चिंता नहीं है। लेकिन सर 142 करोड़ लोगों के लिए, आज 142 करोड़ का देश है सर, 142 करोड़ लोगों के लिए ये इतने मतलब गर्वान्वित होने की बात है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा भाई, हम तो 7 साल के थे 1969 में, उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे। आपस में वी वर स्टूडेंट्स। आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टडीड इन द भारतीय विद्या भवन इन दिल्ली। आई स्टिल रिमेंबर यूएसआईएस के लोग आए थे, यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लोग आए थे 10 दिन के बाद मून लैंडिंग के, एंड दे शोड अ फिल्म ऑफ द मून लैंडिंग देयर, और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ वहां पे, एंड वी वर ऑल वंडरिंग कि विल दिस एवर हैपन, विल इंडिया एवर डू दिस। लेट मी टेल यू दिस, वेयर एज द यंग पीपल लाइक अस, वी वर वंडरिंग कि यार कि यहाँ तो अब अपनी गाड़ियां भी ठीक नहीं बनती हैं। उस जमाने में आपको याद होगा 20-20 साल के लिए वेट करना पड़ता था एक मैजिस्टर कार के लिए, फिएट कार के लिए 12 साल वेट करना पड़ता था सर। जो स्कूटर होता था, बजाज का जो स्कूटर आया करता था, वेस्पा जिसको बोला करते थे, उसके लिए वेट करना पड़ता था 8 साल। वो जमाना था, और आज का जमाना देख लीजिए सर, भारत कहां पहुंचा है। मतलब जबरदस्त, ये बनना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी ने हमेशा ही कभी भी, प्रदीप जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी का आप उनके भाषण सुनिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो की एस्टैब्लिशमेंट करी, डॉक्टर होमी भाभा हों, जवाहरलाल नेहरू हों, हमारे अपने सतीश धवन हों, इन सब लोगों को हमेशा मोदी जी ने क्रेडिट दिया है जहां देना चाहिए। अब मुझे अंबेडकर साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को हो क्या गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस घड़ी में, जीत की घड़ी में, पूरा देश अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, विजय है ये। यहां पर कांग्रेस ऐसे क्यों बात कर रही है सर? उनको मालूम नहीं है कि पीपल विल टर्न अगेंस्ट देम? अंबेडकर साहब जी, वो मैं जैसा बोला, वो इतने डेस्परेट हो गए हैं कि जितने मोदी जी नए एवेन्यूज में अपना कदम रखते जाएंगे तो उतने ज़्यादा वो डेस्परेट होते जाएंगे। मगर ऐसी घड़ी में जब पूरा देश आज आनंद मना रहा है, पूरा देश आज जल्लोष मना रहा है, तो ऐसी घड़ी में
ऐसा बर्ताव करना एक विरोधी पार्टी के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये कांग्रेस का बिल्कुल गलत है। इतना तो बोलना चाहिए कि हमारे देश के लिए ये गौरवान्वित होने वाली बात है, हमारे देश का ये विजय है, हमारे देशवासियों के लिए बधाई देनी चाहिए। तो ये वो मोदी के लिए क्यों कोसते बैठते हैं? अभी ये इवेंट जो है ये देश का इवेंट है, ये पूरा नेशनल इवेंट है। मोदी जी खुद मानते हैं कि वो, मोदी जी कभी ऐसा नहीं बोले कि ये मेरा अकेले का यश है करके, या मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया। मगर हमको याद है कि जब नासा को सब लोग गाली दे रहे थे, तभी मोदी जी ने उधर जाके उनके चीफ साइंटिस्ट को अपने गले लगाया, उसको बोला कोई बात नहीं है, हार और जीत ये तो सर नासा नहीं, इसरो 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 नासा अपनी नहीं है सर, नासा यूएसए की है। सॉरी सर, इसरो में one day we'll run NASA also, don't worry, Yes, that day is soon, NASA that day will also. come, yes। आज मैं एक बात सुन रहा था, जी। तो अभी रशिया वालों को यदि जो मून के ऊपर कुछ काम करना है तो उनको अपना कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। We will be guiding the world now. Sir, space is hard. Ambedkar Sir, sahab, space is very hard. Japan lost its spaceship in May. Pradeep ji, Yes, yes. in May, the Japanese spaceship got lost. Bilkul. Nobody knows what happened to it. And I think the Soviet, the Russians, I think after 27 or 28 launches, 7 to 8 only has succeeded. Yes. Where they are success rate around 30%. But जिस प्रकार से study हो गया कि today ISRO is earning money for the country. That's right. ISRO is earning the estimates for 2023 is that from 2014 to 2023, 157 million US dollars ISRO has earned for this country, and 223 million euros ISRO has earned for this country. So that has become a profit center on its own. तो मोदी साहब का जो बी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इस तरफ से करना, शायद स्पेस मिशन हैज बिकम अ सक्सेस. वी नीड टू गिव क्रेडिट. एज यू सेड, मिस्टर मोदी स्टूड देयर and said if there is a failure I'm responsible. जैसे आपने कहा, उनको गले लगा दिया. भले विरोधी कहते हैं कि मोदी साहब ने उनको खींच के ले लिया अपने हाथ में और रो नहीं रहे थे, वो रोना शुरू कर दिया. तो but this statistics itself proves that what great achievement we have got, Ambedkar Sahab. We are earning money. ISRO is earning money. We, as you said, the fourth country in the whole world. It's a proud moment for India, Ambedkar Sahab. जी, और मोदी जी का जो विजन है, वो विजन आज तक इस देश में किसी प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया नहीं. उनका विजन जो है कि देश का हर पैसा जो है, हर रुपया जो है, उसका पूरा जो यूटिलाइजेशन है, उसका उपयोग है, वो पूरा देश के लिए हो और उसमें से रुपया जनरेट हो. अभी देखिए, आपने ही बात किया अभी कि इसरो जो है वो अभी एक बिगेस्ट प्रॉफिट मेकिंग वेंचर होगा. Yes. जो पहले कांग्रेस के जमाने में मनी वेस्टिंग ये जो एंटरप्राइज था, वो अभी बिगेस्ट प्रॉफिट मेकिंग ये जो एंटरप्राइज होगा. जैसे आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मोदी ने अन्याय किया करके राहुल गांधी उनके गेट पर जाके आंदोलन चलाए. आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास जग से, पूरे वर्ल्ड से ऑर्डर आ रहे हैं. तो ये जो एक विजन है मोदी जी का कि 1 रुपया लगाएंगे तो उसमें से 2 रुपया कमाएंगे. भले हम बोलते हैं कि गुजराती है मोदी, तो ये गुजराती का नेचुरल देन है कि जो पैसा आपने लगाया उस पैसे का रिटर्न मिलना चाहिए. तो आप देखेंगे आने वाली दुनिया में, जैसे अभी इसरो एक दुनिया का लॉन्च पैड हुआ है, लोग आके अपने सैटेलाइट्स इसरो में से लॉन्च कर रहे हैं. तो ये एक मोटा बिगेस्ट मनी मेकिंग स्पेस जो है, स्पेस बिजनेस, ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले. सर, वी हैव द वर्ल्ड रिकॉर्ड. सर, हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसरो के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वी हैव लॉन्च 110 सैटेलाइट्स इन वन मिशन. 110 छोटे सैटेलाइट सिर्फ इसरो ही लॉन्च कर पाया है और कोई देश नहीं कर पाया. इनफैक्ट इवन द अमेरिकन्स, अर्लियर डोनाल्ड ट्रम्प एंड नाउ जो बाइडेन, दे हैव आस्क्ड मिस्टर मोदी, प्लीज एक्सप्लेन टू अस हाउ यू आर एबल टू डू दिस. आप लोग ये कैसे कर पा रहे हैं, ये हमें बता दीजिए. लेकिन अजीबोगरीब मसला है. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली सर, कि आज की तारीख में भी जो मतलब गौरव प्राप्ति का दिन है, गर्वान्वित होने का दिन है, बहुत ही खुश होने का दिन है. अमृतकाल प्रदीप जी, तब भी कुछ लोग उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं. चलो बोलने दीजिए. आपको अगर याद होगा प्रदीप जी, अंबेडकर साहब को तो नेचुरली याद ही होगा, अरे जब पहली स्पेस मिशन गई थी तब कितना क्रिटिसिज्म हुआ था उसका पूरी की पूरी दुनिया में. उसके बाद अभी जब पहला मंगलयान जब लॉन्च हुआ, ऑफ कोर्स द वर्क ऑन इट हैड ऑलरेडी been done much before,
इट जस्ट सो हैपेंड दैट मिस्टर मोदी हैपेंड टू बी प्राइम मिनिस्टर और उन्हीं के हाथों इफेक्टिवली बहुत सफलतापूर्वक मंगलयान कंप्लीट हुआ. आई स्टिल रिमेंबर द BBC and some European television channels saying India is such a poor country, why do they need a space program? अबे सर, आज की तारीख में it is only because of our space program that we are able to predict कि कहाँ पे फ्लड आने वाला है, किस जगह पे अर्थक्वेक आने वाला है, कहाँ पर रेन्स होने वाली है, किस क्या क्या क्रॉप पैटर्न्स हैं. इनकी वजह से आगे जा करके ये पूरी चीजें एलिमिनेट होने वाली हैं. इट इज ब्रिलियंट व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट. लेकिन सर चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, मतलब बल्कि आप पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे इसको, सीधी बात है, लेकिन अब तो पॉलिटिसाइज कर दिया गया है. अब तो लिहाजा आपको बोलना ही पड़ेगा. जैसे आप बोल रहे हैं मोदी जी के अचीवमेंट है, अभी तक तो मोदी जी बोल रहे थे देश के अचीवमेंट है, तो अब बीजेपी को तो जबरन इसको आगे जाकर के ले जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये मोदी जी की वजह से हुआ है. अंबेडकर साहब. यस, हम तो कहेंगे ही, क्योंकि ये मोदी जी के वजह से हुआ है, ऐसा हमको कहना ही पड़ेगा. मगर मैं तो उसके आगे जाके कहता हूं कि दुनिया को मालूम है, जनता को मालूम है कि मोदी जी की अचीवमेंट ये है करके, क्योंकि जो जनता है भारत की वो बहुत प्रबुद्ध है. हमको लगता है कि भारत में अशिक्षित लोग ज़्यादा है, मगर जो लोग अशिक्षित है उनमें भी जो नेचुरल कॉमन सेंस है उसको हमको जानना पड़ेगा. और जब भी तक आपने देखा है इतने जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें जो भारतीय वोटर्स का, इंडियन वोटर्स का जो बिहेवियर है वो पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया है कि जैसा चाहिए वैसा वो सोच समझ अपनी अच्छी रख के ही वोटिंग करते हैं. हम भले अपने वोटिंग सिस्टम को कोई भी दोष लगाते हैं, ईवीएम मशीन को दोष लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, या पैसा बांटा जाता है, इलेक्शन का कमर्शियलाइजेशन हुआ है, ये सब बात कुछ भी नहीं है. कमर्शियलाइजेशन हुआ है तो लोग जरूर पैसे लेते रहेंगे, हुआ रहेगा तो, मगर पैसा लेकर वोट जो देते हैं वो देश की जो कल्याण करता है उनको भी उनके आगे के जनरेशन के लिए. अंबेडकर साहब ना, एक चीज बहुत हाईलाइट करना पड़ेगा ये पूरे इसरो वाले मामले में. मोदी साहब एक ही लीडर है जिसने इसरो को जस्टिस दिया. जब नंबी नारायण को हैरेसमेंट हुआ, नंबी नारायण को जेल में भेज दिया था, नंबी नारायण को स्पाई केस और अलग अलग एलिगेशंस करके जब वो क्रायोजेनिक इंजन पे वर्क करा था, पहले ही करा था, हम लोग 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद एक सुपर जीनियस पूरे विश्व में हो सकता था, मगर उनको पूरे प्रोजेक्ट को जिस प्रकार से हार्म किया, उनको जेल में डाला गया. वो मोदी साहब थे कि वापस जब प्रधानमंत्री बनने तो इसका पूरा वापस रीइन्वेस्टिगेशन करके जो ऑफिसर्स कंसर्न थे उनको जेल में भेज दिया, उनको एफआईआर लगा दिया और नंबी नारायण जैसे साइंटिस्ट को न्याय दिया. ये एक मोटिवेशन था. क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा चीज था कि किसी ऑफिसर पे अन्याय हो, बिकॉज वो देश को एक नया स्टेज में लेके जा रहा था और पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम में डाल दिया था. मोदी साहब आके जस्टिस दिया, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था इसरो को. आपको नहीं लगता अंबेडकर साहब? जरूर लगता है. हम सबको ये जानना चाहिए कि भारत में बहुत से स्लीपर सेल कार्यरत है, उसमें कम्युनिस्ट रहो, और मैं तो जाके बोलता हूँ देश की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी बाहर के जो इंडिया विरोधी लोग हैं उनके एजेंट बन गए हैं, और उनका जो एजेंडा रहता है वो एजेंडा सेट किया जाता है बाहर के कंट्रीज में, और उधर से जो इंडिया का कोई भी प्रोग्रेस हो तो उनको अच्छा नहीं लगता. उसमें हर्डल्स कैसे क्रिएट किए जाए, जैसा मैं तो बोलता हूँ ये मणिपुर है, ये मणिपुर भी क्रिएट किया गया हुआ चीज़ है. जबकि हम देखते हैं कि जब कल से अधिवेशन संसद का शुरू हो रहा है तो पहले दिन वीडियो वायरल होता है. घटना कभी की है, घटना 1 महीना पहले की है, तो ये सब जो 2 महीने पहले 2 महीने पहले की है, ये सब जो देश विरोधी ताकतें हैं वो दिल्ली में बैठी है, देश में बैठी है, और इनका राज इनका चल रहा था अभी तक. जब कांग्रेस का शासन था, मोदी जी आए तो ये सबको चुन चुन के उन्होंने निकाला बाहर उनके स्लीपर सेल से, और उनके ऊपर ये कार्रवाई करने शुरू की. जैसे कि बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो ह्यूमैनिटेरियन काम करने के बहाने पे देश का विरोध कर रही थी, वो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को विरोध कर रही थी, जैसा नर्मदा बचाओ आंदोलन है, वो देश के ही लोग थे, उनको बाहर की ताकतें यूज कर रही थी. तो ये जो देश की एक बड़ी ट्रेजेडी है भारत की, कि भारतीय लोगों को यूज करके इंटरनेशनल ताकतें भारत विरोधी जो है वो भारत में कोई घटना
करती है और भारत में जो डेवलपमेंट होती है उसको अपोज करती है। आपने जो उदाहरण दिया नंबी नारायण, जी। तो उसका प्रोमिनेंट उदाहरण है कि ऐसे ही स्लीपर सेल्स ने काम करके उसको दबोचा But और they उसके succeeded. हाथ से जो अच्छा काम होने वाला था वो नहीं होने दिया। So we went मैं back तो- by 10 years. 10 साल पीछे कर दिया हमें। यस, मैं तो समझता हूँ अब्दुल कलाम जी को भी ऐसा ही विरोध हुआ था बहुत जगह पे, जी, हुआ था। वॉज ए वेरी नेक पर्सन, नेक Yes, इंडियन। तो yes. उसने वो सब विरोध को बाजू रख के पूरा फर्म स्टैंड लेके उसने कुछ काम करके दिखाया। But तो ये congratulations, sir. Congratulations to everybody. Chandrayaan 3 has succeeded. Now we wait for the Vikram lander to open its door so that the Pragyan rover can come out. I think that will Yes. happen tomorrow. and we will wait for Aditya mission also. Aditya mission also, and then after that mission to Mars, and then the Yes. mission to Jupiter. That is also Yes, happening. sir. That's So, also in the the pipeline. Indian Space Odyssey. That is absolutely fantastic. All right, Indian Space Odyssey. We'll need another Stanley Kubrick to make that movie. That will be fantastic. Right, thank you very much, sir. अम्बेडकर साहब एक बार फिर मुंह मीठा कीजिए। हम तो मुंह मीठा कर ही रहे हैं यहाँ पे, पूरा देश मुंह मीठा कर रहा है। हम सब लोग बहुत खुश हैं साहब। थैंक यू। Yes, sir. नमस्कार सर। Thank जय you. हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू सर। Thank you.